یس شکریہ تشریف رکھیں. خدا میں یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. خوش ہیں؟ کیوں؟ بارش ہو گئی اس لیے؟ نہیں، ہماری خوشی کا راز ہے وہ خداوند سے ملاقات ہے. ہم یہاں پہ خدا سے ملاقات کرنے آتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں گرمی سردی کوئی موسم ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتا. جیسی مرضی موسم ہو، آپ بخوبی واقف ہیں کتنی سردی، کتنی گرمی، لیکن ہم اپنی عبادتوں کو کبھی بھی روکتے نہیں ہیں، چاہے چرچ کی ہو یا چرچ کے باہر کی. تمام عزت جو ہم کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہم نہیں روکتے. آج کافی دیر کے بعد میں اس میسج کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں. کل رات کو بھائی منشا کے گھر میں عبادت تھی. وہاں ایک بیٹی نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ جب آپ نبوت کرتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں لوگوں کو، تو کچھ لوگ آپ کو کہتے کہ یہ اس میں غیبدان روح ہے. لیکن اگر غیبدان روح ہے تو میں اکثر چیلنج کرتا ہوں، یہ عبادت ہماری آن لائن چل رہی ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی بہت سارے لوگ ہمیں اس وقت واچ کر رہے ہیں. بہت سارے کلیسیاں دیکھتی ہیں، بہت سارے خادم ہمیں واچ کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اور میں اکثر چیلنج کرتا ہوں، غیبدان روح اگر کسی کے اندر ہے تو ایک جھٹکے کی بات ہے. اگر دعا کی جائے فارغ ہے، نکل جاتی. میں نے کسی کو یہاں پہ بلایا کہ آپ میرے چرچ میں آئیں، نہیں آئے، کیونکہ اس کے اندر غیبدان روح ہے اور اسے پتا ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں گی اور میں خالی واپس آؤں گی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کو بھی شک ہے تو جس مرضی خادم کو لے کے آ جائے یا مجھے کہہ کے فلاں خادم کے پاس چلے، وہ میری غیبدان روح جو ہے نکال دے. اگر خدا نے مجھے یہ بلیسنگ دی ہے تو کوئی خادم اس کو چھین نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھیں. یہاں خدا نے بہت بہت بڑے معجزات کیے. آج خاص ہم اسی چیز کو دیکھیں گے، نبوت کیا ہے. 140 کے قریب حوالہ جات ہیں نبوت کے. 140. آپ کو جب کوئی یہ بات کہتا ہے تو اسے کہیں اپنے پادری نو لے کے آ. چیلنج کریں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چیلنج کریں. کہیں لے کے آؤ پادری نو. اگر کوئی ایسا پاسٹر ہے. ایک بہن کے اندر غیبدان روح تھی. ایک پاسٹر نے دعا کی، نکال دی. اس کا شوہر بھی پاسٹر ہے تو اس نے میرے ساتھ شکایت کی. اس نے کہا جی میری بیوی کے اندر نبوت کرنے کی، رویا دیکھنے کی روح تھی. اس کو خدا نے بلیسنگ دے رکھی تھی. ایک پاسٹر آیا، اس نے دعا کر کے وہ لے گیا ساتھ ہی. میں کیا پادری صاحب، اگر تو آپ بائبل کو جانتے ہیں تو آپ بے بنیاد بات کرتے ہیں. کسی کی بلیسنگ کوئی چھین نہیں سکتا. اپنی غلطی سے ختم ہو سکتی ہے کہ جب ہم غلطی کریں گے تو پھر وہ بلیسنگ ختم ہو سکتی ہے. ادروائز بلیسنگ کوئی ختم نہیں کر سکتا. جتنا مرضی بڑا پاسٹر ہو، جتنا مرضی بڑا خادم ہو، وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کسی کی بلیسنگ کو ختم نہیں کر سکتا. اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں. آج ہم خدا کے کلام میں سے کچھ حوالہ جات دیکھیں گے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے بتایا تقریباً 140 حوالہ جات ہیں نبوت کے تعلق سے. لیکن اس میں چند ایک دیکھیں گے جس سے ہم سیکھیں گے کہ غیبدان روح کیسے نکل سکتی ہے اور جو نبوت ہے وہ کیسے آپ کرتے ہیں اور وہ کیسے قائم رہتی ہے. آئے نکالے میرے ساتھ اعمال کی کتاب 16 باب 16
ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे हमें एक वाक्य नजर आता है, यहाँ पे हमें एक लड़की नजर आती है जिसके अंदर गैबदान रूह है, और वो गैब गोई के वसीला से क्या कर रही है, अपने मालिकों के लिए कमाई कर रही है। गैबदान रूह जिसके अंदर होती है वो समझ ले जादूगर है, वो कमाई कर सकता है। लेकिन आप में से या कोई भी ऐसा मुझे कोई शख्स कोई साबित कर दे कि हम ये खिदमत जो है लालच से करते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि तू नजायज नफा से खिदमत ना कर बल्कि दिली शौक से कर। और रात को सुमेरा मुझे कहती भाई साहब हाले तो ट्रिपल सिक्स का मैसेज नहीं तो ही देता, क्योंकि इस साल अभी तक ट्रिपल सिक्स का मैसेज नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। लेकिन बदरुआ ने जोर मारता है, कहती क्यों? मैं क्या, मेले शुरू हो गए। जब मेले शुरू होते हैं, ढोल बजते हैं, तो बदरुएं नाचती हैं, फिर निकलती हैं। 3-4 दिन से रात को अक्सर हम बैठे होते हैं। अब वो आज मुझे वो फैमिली भी नहीं नजर आ रही। डेली रात 9-10 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, बदरू है उनकी बेटी के अंदर। लेकिन आज इबादत है, कहा था कि इबादत में आना नहीं आए। लोग क्या समझते हैं कि पादरी वेला इन्हों जो मर्जी कर लो। क्यों? मेरा दिली शौक है ये बदरुएं निकालना। खुदावन ने मुझे ये ब्लेसिंग दे रखी है, मैं इस तोड़े को क्या करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। जब आप अपना तोड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर इसको दबा देंगे तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी ये बात कहता है तो उसे फौरन घबराए ना, परेशान ना हो। मैं कह रहा हूं ना, कहें कि आओ अपना पादरी लेके आओ, अपना बाऊ लेके आओ, अपना फादर लेके आओ, अपना बिशप लेके आओ, जिन्हों लेके आओ ना लेके आओ, और साढ़े पादरी ने दुआ करके उसकी ब्लेसिंग काट दो जरा। अगर गैबदान रूह है तो झटका है। देखते हैं अभी गैबदान रूह पर। जी पढ़े। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौटी मिली जिसमें गैबदान रूह थी, जिसके अंदर क्या थी? गैबदान रूह थी। और वो क्या करती थी? वो गैब को से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। और ये ज़हन में रखें, मेरे पास भी लोग आते हैं, भाई साहब साढ़े घरों पैसे निकल के दसना जरा कि मैं नहीं दसदा। भाई साहब मैं हो गया, मुझे खुदा बता भी दे, लेकिन मैं कभी भी ये बातें नहीं बताता। ना तो मैं ये बताता हूं कि आपको किसने किया है, आपको किसने तवीज़ डाल दिए हैं, क्या किया है। मैं कभी ये बातें नहीं बताता, क्योंकि मुझे खुदा ने ये बरकत दे रखी कि मैं लोगों में सुलह करवाता, लड़ाई नहीं करवाता। वो लोग जो ऐसे काम करते हैं वो लड़ाई झगड़े करवाते, अपनी बल्ले बल्ले कर लेनी है, अपनी बल्ले बल्ले करके तो क्या करना, कमाई करनी है। मैं जी किसी का 50,000 रुपया चोरी हो जाए, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे कहा ये हमारा जेवर चोरी हो गया, तो मुझे बताएं जी, क्या बताऊं मैं कि फलाने ने चुक लिया, मैनू तो पैसे दे जाने लगे घर, उन्होंने जो तबाही होनी हो मैनू पता है। अक्सर लोग कहते भाई साहब नहीं तुसी यकीन रखो, नहीं करांगे गल। मैं क्या इत्थे यकीन होंदा, बाहर नहीं यकीन होंदा। आपने यहां से निकलना, जाते ही अभी परसों जिस बदरू को मैं निकाल रहा था उसने उनकी फैमिली के कुछ नाम लिए, तो वो सारी वीडियो बना रहे थे, बैठ के वीडियो बना। तो मैं क्या वीडियो बनाई जा रहे जे, झूठ बोलन डी जे, ये ज़हन च रखना, जाके लड़ना पैना कि जाके उनसे लड़ना। मैं क्या मैं नहीं नाम ले रहा, ये बदरू नाम ले रही है उन लोगों के। और ये लोग सही है या गलत है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो चीजें ये बता रही है 2 नंबर बातें कर रही है। ये आपके घर में लड़ाई करवाएगी और आप यहां पे आना बंद हो जाएंगे, ये सेहत में रखें। क्योंकि बदरू का काम है लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना। क्योंकि बदरू के बारे में, इब्लीस के बारे में लिखा है कि ये झूठों का क्या है, सरदार है। तो झूठियां का सरदार ही होवे तो फिर किस तरह ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि एक लौड़ी के अंदर क्या है, गैबदान रूह है। और गैबदान रूह जो है ये मृत्यु देवता जो है उसकी रूह जिसके अंदर आ जाती है वो ऐसे काम करता है, और उसके अंदर गैबदान रूह होती है। ये पावरफुल रूह है, लेकिन लोग इसको अक्सर इस्तेमाल कैसे करते हैं।
पाक रूह आ गया है। कई लोग धागे बांधना शुरू हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में से किसी जगह पर मुझे कोई धागा बांधता हुआ पास्टर, कोई खादम, कोई मनाद नजर आई। किसी ने भी बाइबल मुकद्दस में किसी का जिक्र है कि किसी ने धागा बांध के दे दिया हो? नहीं। धागा बांध दिया, गिरा लगा दी, ये सारा कुछ जादूगरी में जाता है। जब हम ये काम करते हैं तो हम यकीनन जादूगर हैं। खुदा के लोग ऐसे काम नहीं करते। यहां देखते हैं कि उस लौंडी के अंदर क्या है? गैबदान रूह है, पितृ देवता की रूह है, और वो क्या करती है? अपने मालकों के लिए कमाई करती है। मालकों के लिए कमाई कैसे करती है? लोग आते हैं, साड़ी चोरी होगी, वो कुड़ी उस वेले दस दी है, वो पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये हो गया, वो बता देती है और वो पैसे कमाते हैं। लेकिन अब एक झटके में कैसे निकलती है, देखें जरा, निकालें जी। वो फलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो। अब क्या है? वो देवता की बदरू जिस लौंडी के अंदर, वो भी जानती कि ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये खुदा के लोग हैं। आज हम जैसे मर्जी कहते रहे, लेकिन बदरुओं को भी पता कि खुदा के बंदे कौन से हैं। मैं अक्सर बात करता हूं कि बदरुएं भी जानती हैं कि कौन सा खादम है जिसके पास ब्लेसिंग है, किसके सामने मैंने जाना है और किसके सामने नहीं जाना। बदरुआं भी बड़ियां चालाक हो गई हैं। ट्रेनिंग होगी ना उन्होंने भी, ट्रेनिंग होगी उनकी भी। वो भी खादमों को जानती हैं कि कौन सा खादम ब्लेसिंग वाला है और उसके पास ये ब्लेसिंग है कि मैंने उसके सामने जाके फंस जाना है और वो कभी उसके सामने आने की जरूरत नहीं। परसों जो मैं बता रहा हूं, रात को जब उस बेटी के अंदर बदरू हाजिर हुई तो उसने कहा जी मैं फलाना शाह। मैं कहा अच्छा, बातें करती रही, वो वीडियो बनाते रहे। बाद में मैं कहा चल लकीरें तो जरा काट। अब उसने जब लकीरें निकाली तो मुझे पता चल गया ये कौन है। मैं कहा बस हुण दस तू है कौन? तो हंस पड़ा, हंस के कहता तुसी मैनू फड़ लिया? मैं कहा हाँ, मुझे पता चल गया कि तू कौन है और अब तू सीधे तरीके से मेरे साथ बात कर, नहीं तो फिर मैं इनके सामने तुझे फेंटी लगाऊंगा, मैं मारूंगा। कहता जी जो आप समझ गए मैं बाकी बोझ। और मैंने इसकी सारी फैमिली को पकड़ा हुआ है, सारी फैमिली उसकी गिरफ्त में है। लेकिन हम क्या हैं? हम ऐसे लोग हैं कि हम खुदा पर यकीन नहीं करते। अगर कोई खादम ऐसा मिल जाए तो हम कहते हैं ये यकीनन जादूगर ही होगा, ये भी लगता बदरू ही है। अगर बदरू है, खुदा यीशु मसीह कहता है बदरू को बदरू नहीं निकाल सकती। निकाल सकती है, तगड़ी बदरू कट भी लेती है। भी तुम दस, मेरे सामने बड़े वाकयात हुए हैं जिहड़ियां तगड़ियां बदरूआं छोटियां छोटियां बदरूआं भी कट छड़ दी, धोखा देने के लिए। कैसे? मेरे पास एक फैमिली आई, उनकी अम्मी के अंदर बाबा था, तगड़ी बदरू, उसने बेशुमार बदरुएं निकाली हुई थी, लेकिन एंड में जाके खुद फंस गई। तो जब मेरे पास आए तो जब हम उसकी बदरुएं निकाल रहे थे तो मैंने कहा कि तुसी फड़े सारे ने, तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਜੇ। ਇਹ ਬਦਰੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਦਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, क्या है बल्ले बल्ले करवा दी। लेकिन एंड पे जाके क्या हुआ, उसके अपने अंदर इतने बदरुएं थी कि 2.5 से 3 महीने लगा के हमने यहां से उसकी बदरुएं खत्म की। यहां पे गैबदान रूह की बात हो रही है। पुलूस और सलास को देख के वो क्या कहती है कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, गलत रास्ता नहीं। आज बहुत सारे खादमीन ऐसे आ गए हैं, ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि रूहों को परखो। मैं अक्सर कहता मैनू भी परखो, मैं कदों कहना कि मैं बड़ा सही हाँ, मुझे भी परखें। अगर आपके अंदर परखने की रूह है तो मुझे पहले परखें कि मैं वाकई ही खुदा का बंदा हूं या मैं वाकई पितृ देवता नहीं मर गया मेरे च। चेक कर ले, चेक करना आसान है। इसलिए यहां पे हम देखते हैं कि क्या कह रही है वो बदरू जो है, वो क्या कह रही है? ये बदरू है। हाँ जी पढ़े कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं, जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं जी। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। और पुलूस और सलास नहीं चाहते थे कि इसको निकाला जाए, वो नहीं चाहते थे इसको छेड़ा जाए।
क्योंकि वो समझते होंगे कि इन्हों की कमाई खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिरकार तंग आके फिर क्या किया उन्होंने, पढ़े जी जरा। आखिर पलूस सख्त रंजीदा हुआ, आखिर पलूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। नहीं निकली, नहीं निकली ना, निकल गई, उसी घड़ी निकल गई। अगर बदरू है तो अगर कोई खुदा का खादम सिर्फ ये हुक्म ही दे दे तो बदरू निकल जाती है, तो मेरी क्यों नहीं निकलती? फिर क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, मेरी क्यों नहीं निकलती? क्या कोई खादम नहीं ऐसा जो निकाल दे? ये मन घड़त बातें हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर वो लोगों पर क्या करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। खुद कर नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप भी मेहनत करें, जो बातें करते मेहनत करें। खुदा का शुक्र है, मुझे 13वां साल शुरू हो गया, 13वां साल शुरू हो गया और मैं 13 साल हो गए मैं रोजा रखता हूं। खुद को मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं अपना रोजा नहीं छोड़ता। जब खुदा ने मैंने कमिटमेंट की, खुदा से मैंने कहा कि खुदा अगर तूने मैं ये ब्लेसिंग दी है तो खुदा ये ब्लेसिंग कायम रहे, खुदा मैं रोजे रखूंगा और खुदा तो मेरी ब्लेसिंग को क्या करना, बढ़ाते जाना। खुदा मेरी ब्लेसिंग को बढ़ाता है और यही नेमत मैं अपनी कलीसिया में, अपनी टीम में मांगता हूं खुदा से कहता हूं खुदावंद मेरी टीम में ये ब्लेसिंग ट्रांसफर हो। वैसे ही जैसे एलिया की ब्लेसिंग जो थी वो एलिया में, एलिया की ब्लेसिंग कहां पे गई, एलीशा में। कैसे गई? उसने उसकी खिदमत की, उसके साथ वफादार रहा और आज भी जो लोग वफादार रहते हैं वो ब्लेसिंग हासिल कर लेते हैं। भज भुज के नहीं, कदी है पादरी को, कदी है पादरी को, कदी है इस पादरी को। जब हम दौड़े लगाते रहते हैं तो फिर हम ब्लेसिंग हासिल नहीं कर सकते, फिर हम खाली रहते हैं, फिर हम बातें तो बहुत कर सकते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही उन्होंने हुक्म दिया वो रूह उसमें से निकल गई, एक झटका नहीं लगा। बदरू एक झटके से निकल जाती है, लेकिन नेमत जो है वो आप जितनी मर्जी नेमत मेहनत कर लें आप किसी की ब्लेसिंग को निकाल नहीं सकते। ये चैलेंज है मेरा। अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो समझता है तो मेरे सामने आके, यहाँ पे हम कैमरे चला लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, मेरी ब्लेसिंग निकाल के दिखाए। ये चैलेंज मैं करता हूं। कोई भी ऐसी बात करता तो आप कहें कि आए हमारे साथ चले, या हम अपने पास्टर को बुला लेते हैं, आप करके तो देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि खुदा किसके साथ काम करता है। खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसी को इस्तेमाल भी करता है। जी पढ़े आगे जरा। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, अब उसके मालिकों ने देखा हमारी कमाई तो गई, इसकी बदरू तो निकल गई, अब कैसे हम बताएंगे, कैसे हम कमाएंगे। लेकिन ये बदरू का ही कमाल है, उसकी बदरू ने मालिकों को पकड़ लिया। आज भी कई बार बदरू निकल के किसी और को पकड़ लेती है और किसी और को पकड़ के क्या करती है, इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ये भी बदरू है जो लोगों को इस्तेमाल करती है कि तू पादरी के खिलाफ गल्ला करनी शुरू कर दे, तू कह कि पादरी जड़ा है ये गैरदार रूह है, ये बदरू काम करवाती है। ऐसे लोग बदरू गिरफ्तार होते हैं, उनके अंदर बदरूएं काम करती हैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन उंगली उठाना खूब जानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पलूस और सलास ने जैसे ही बदरू को निकाला उसके मालिकों को पता चल गया कि हमारी कमाई तो गई, और साथ ही उन्होंने क्या किया, एक प्लानिंग की, बाहर निकल आए और आम लोगों को इकट्ठा किया और चौक में खड़े होकर कहा कि ये बंदे जो हैं ये गलत तालीम देते हैं। और सूबेदार आ जाता, पढ़े जरा थोड़ा सा आगे। तो पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गई, पर उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बनाते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रुवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उनके कपड़े फाड़ दिए। उनके क्या कर दिए, कपड़े। बदरू ने कितना बड़ा काम करवा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको जेल में बंद कर दिया गया और वो लेकिन जेल में भी बैठ के क्या कर रहे थे, खुदा की हम्द कर रहे थे। आप मुश्किल में होते, परेशानी, ये सबसे
बड़ी बात जो ये है कि अगर आप खुदा के लोग हैं तो आप परेशानी में भी खुदा को कभी भी भूलेंगे नहीं है, बल्कि आप हमको सुना करेंगे, गीत गाएंगे, रूहानी गजलें गाएंगे, क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि बदरू को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड की बात है, लेकिन ब्लेसिंग को निकालना नामुमकिन सी बात है। आए कुछ हवाला जात देखते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर ये सारा कुछ। निकालें इमाल 2 बाब 17 और 18 2 आते जल्दी से पढ़ दें। 140 नंबर पेज है। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर मैं पर अपनी डालूंगा, रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगे। नबूवत करेंगी। ये क्या है? ये नबूवत है जो हम करते हैं। खुदा कहता है कि आखिरी जमाना में ये सारा कुछ होगा, और फिर आप लोग कौन से ठेकेदार बने फिरते हैं कि आप किसी पर उंगली उठाते हैं? क्या आप बाइबल को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं? बाइबल मुकद्दस में मैंने बताया 140 हवाला जात मैंने देखे आज। यहाँ पे आप देखते हैं कि लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। आगे बढ़े जरा 18 का कर दे। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे जवान और तुम्हारे क्या? और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और वो क्या करेंगे? फिर खुदा झूठ बोल रहा ना, बाइबल के अंदर झूठ बोलती है। क्या ख्याल है? ऐसे लोगों से सवाल करें, जब आपसे शर्मिंदा होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, उनसे कहें कि खुदा तो ये फरमाता है, फिर तू कौन से खुदा को मांगता है? पढ़ दे एक और हवाला, आगे पढ़े जरा। रोमियो का हाथ 12 बाब और उसकी 6 अगला वाला निकाल के रखे। पहला ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 10 रोमियो 12:6 186 नंबर पेज। अगला हवाला निकाल लें। पहला ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 10 जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ते जाएं। और जो कि उस तफरीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमत मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली। क्या है? तरह तरह की नेमतें। कैसी? जैसी किसी की तफरीक है, जैसी आप मेहनत करते हैं, जैसी आप खुदा से लगाव रखते हैं, वैसी ही नेमत खुदा आपको देगा। जैसा मांगेंगे। मांगना है नहीं, गल्ला पुठियां सीधियां कर देनियां। यहां पे क्या? दोबारा से पढ़ें इसको। और जो कि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमत मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। ईमान के अंदाजा के मुताबिक क्या करे? नबूवत करे। ये नहीं, आपको पता है कि मैं जब तक खुदा मुझे क्लियर ना दिखाए मैं कभी भी आगे बात नहीं करता। मुझे लोग पूछते हैं कुछ नहीं, मैं कहती मुझे खुदा दिखा नहीं रहा। जब खुदा दिखाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर खुदा मुझे बताएगा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि खुदा का काम है नबूवत करना, रोया देना, ये खुदा के काम है। आगे पढ़े जरा। पहला ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 10 किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा। सब तस्वीरें एक ही रूह करता है। रूह एक ही है, नेमतें तरह तरह की है। आज हम देख रहे हैं कि नेमतें हैं ये सारी। नबूवत करना, रोया देखना, ये खुदा की तरफ से सारा कुछ। अगला वाला पढ़े। पहला ग्रंथियों 13 बाब उसकी 2 अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकिफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो क्या है? तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों में मोहब्बत है जो ऐसी बातें करते हैं। मोहब्बत तो बहुत सारे गुनाहों पे पर्दा डाल देती है। कोई गुनाह करो तो उस पर भी पर्दा डाल देती है। ये मोहब्बत है। लिखा है
کہ وہ محبت میں اگر ہے, اگر نبوت کرنے والا نبوت کرے, غیر زبانہ بولی جو سارا کچھ کرے جاؤ, لیکن اگر آپ آپس میں محبت نہیں رکھتے تو پھر آپ بیکار ہیں. آگے پڑھے ذرا دوسرا والا 14, اسی کا 14 باب پہلی ہے, پھر 3 ہے, 6 ہے. محبت کے طالب رہو, اس کے محبت کے طالب رہو, اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو, اور روحانی نعمتوں کے بھی آرزو رکھو, خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. خصوصاً کس کی؟ گلاں کرو پٹھیاں سے دیا, کیا خیال ہے؟ نہیں, نبوت کی لکھا ہے خصوصاً. پولس رسول چاہتا ہے, خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خصوصاً کیا کرو؟ نبوت کرو, کیونکہ نبوت آپ جب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو قائل کر سکتے, پڑھ سکتے ہیں آگے آپ. لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور جو تسلی کی نبوت باتیں کرتا ہے وہ ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. جی, جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. وہ اپنی ترقی کرتا ہے. لیکن اگر کلیسیا کی ترقی چاہتے ہیں, لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں, تو پھر آپ نبوت کریں, پھر ترقی ہوگی. آگے, اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. جو نبوت کرتا ہے وہ کس کی ترقی کر رہا ہے جی؟ وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. جی آگے, جی پڑھے 6 تک لے جائیں اس کو. اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو, لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ نبوت تر کیا کرو. چاہتا ہوں؟ کہ نبوت کرو. جی آگے, اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. کیا ہے جی؟ نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اگر بیگانہ زبان بولتے تو اس کا ترجمہ اگر آتا ہے تو بولے, اگر نہیں تو پھر کلیسیا میں کم سے کم غیر زبان نہ بولے. یہ خدا کا کلام فرما رہا, میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام فرماتا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ نبوت کرو. آگے 6 ہوگی, 6 تک لے جائیں اس کو. بس اے بھائیو, اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں کسی اور زبان میں بولنا شروع کر دوں تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ تو فائدہ ہوگا آپ کو؟ ایک بار آپ آئیں گے, دوسرے کو چھڈو پرے ہوتے تو سمجھ نہیں آتی. یہی کچھ ہوتا ہے, جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کہتے ہیں چھڈو پرے ہوتے جا کے کی لینا ہے, کسی اور چرچ چلے جائے, کہیں اور چلے جائے جہاں کم سے کم آپ کو سمجھ آئے گی. آگے 18 سے پڑھنا شروع کریں اس کو, 14 کی 18 سے 25 تک. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. کیا کرتا ہوں جی؟ سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. جی آگے, لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں. 5 ہی باتیں کیا کر دوں؟ عقل سے بول دوں. جی آگے, اے بھائیو, تم سمجھ میں بچے نہ بنو, بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو. قرآن میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے, میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنے گی. جی بس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے, ہاں جی آگے, اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان اس کے ہے. لیے نشان ہے, ایمانداروں کے لیے یہ نشان ہے. جو ایماندار ہیں, جو بائبل کو پڑھتے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جب نبوت کی جاتی ہے تو یہ کہاں سے آتی ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اسے چیلنج کریں کہ اگر کوئی ہے روح تو نکالے. آگے بڑھ دیں, 25 تک لے جائیں اس کو. بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولے اور نواقص یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ جی آگے, لیکن اگر سب نبوت کریں لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے. سب کیا کر لیں گے؟ اس کو قائل کر لیں گے. اگر آپ یہاں پہ دعا کرتے ہیں, یہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں, غیر مسیحی لوگ اتنے آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟
कि जब हाथ रख के दुआ करके बताया जाता है, हाल बताया जाता है, तो फिर वो कायल हो जाते हैं कि वाकई ही यहाँ पे खुदा का रूह काम करता है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बदबू है तो एक झटके में निकल सकती है, लेकिन अगर आपको खुदा ने ब्लेसिंग दे रखी है तो फिर आपकी ब्लेसिंग कोई भी छीन नहीं सकता। चैलेंज किया करें, अगर कोई बात करता है तो उसे कहे कि आप आके किसी से दुआ करवाइए और कहें कि मेरी ब्लेसिंग को निकाले। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने